اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ سنو ذرا، ایوب کے کمرے میں جاؤ اور اس سے پوچھو کہ اسے تو کچھ نہیں منگوانا۔ انہیں اپنے بڑے بیٹے کا خیال آیا۔ جی تائی، وہ پاؤں میں چپل پہن کر ایوب سلیمان کے کمرے کی طرف چل دی۔ اس نام سے دل کی دھڑکن نہ جانے کیوں بڑھ جاتی تھی، اور ایسا تب سے تھا جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی۔ تب اسے ایوب نامی لمبے سے لڑکے سے ڈر لگتا تھا، اور اب دل کے دھڑکنے کا سبب کچھ اور تھا۔ دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی تو وہ کمپیوٹر پر کوئی کام کرنے میں مصروف تھا۔ کام تو اس کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ دادا جان کے بزنس کو تایا جان اور بابا نے سنبھالا اور ایوب نے اسے ترقی کی بلندی پر پہنچا دیا۔ ایوب بھائی، وہ تائی امی پوچھ رہی ہیں کہ رمضان کی لسٹ بنا رہے ہیں، کچھ چاہیے آپ کو؟ ہاں، وہ اس کی آواز پر چونکا۔ ہلکے رنگوں کے پرانے سے سوٹ میں جو شاید ہانیہ کا ہی تھا، وہ بہت سادہ مگر معصوم لگ رہی تھی۔ ہاں نہیں، کچھ نہیں، تمہیں پتا ہے میں سب کچھ کھا لیتا ہوں۔ سنو، اس نے کام سے سر اٹھا کر بہت غور سے اسے دیکھا۔ تمہیں کچھ پسند ہے؟ نہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ میں بھی سب کچھ کھا لیتی ہوں، وہ آہستگی سے کہہ کر نکل گئی۔ اس گھر میں بہت افراد تھے، دادی، تایا ابو، تائی امی، ایوب بھائی، زہرا آپا، فریدون، ہانیہ، بابا، امی، اور پھر امی کے چلے جانے کے بعد ماما آ گئی۔ ماما کی گود میں انوشے آئی تو صبا کہیں پس منظر میں ہی چلی گئی۔ پھر بابا اور ماما انوشے کو لے کر انگلینڈ چلے گئے اور وہ وہیں ددیال میں ہی رہ گئی۔ شروع میں بابا اس کے نام پر رقم بھیجتے رہے، پھر یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ انوشے بڑی ہو گئی تھی اور اس کی پڑھائی کے اخراجات بھی بڑھ گئے تھے، شاید اسی لیے انہوں نے صبا کے لیے رقم بھیجنی بند کر دی، لاشعوری طور پر ہی۔ لیکن گھر کے افراد کا رویہ بھی اس کے ساتھ ویسا نہ رہا جیسا امی اور بابا کی موجودگی میں تھا۔ وہ 3 سال کی تھی جب امی اور بابا نے اسے یتیم خانے سے گود لیا تھا۔ تب سے وہ ایوب سلیمان کی شخصیت سے متاثر تھی۔ زمانہ طالب علمی میں وہ ذہین طالب علم تھا، دراز قد، صحت مند، متناسب جسامت، بھاری آواز اور اس پر سنجیدگی۔ وہ جیسے جیسے عمر کی منازل طے کرتا گیا، اس کی شخصیت کا یہ تاثر اور بھی سحر انگیز ہوتا گیا۔ صبا نور کو پتہ ہی نہ چلا کہ کب ایوب سلیمان نے زندگی میں سب سے اہم مقام حاصل کر لیا۔ سب لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے۔ رویت حلال کمیٹی کچھ ہی دیر میں چاند کے نظر آنے یا نہ آنے کے بارے میں اعلان کرنے والی تھی۔ وہ سب کے لیے چائے بنا کر لائی۔ جب چاند کے نظر آنے کی خبر چلنے لگی، خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب ایک دوسرے کو رمضان کی مبارکباد دینے لگے۔ سنو صبا، سہیلیہ سے پوچھ کر سحری کے لیے آٹا بھی گوندھ دو، وہ فریدون اور ہانیہ تو قیمہ ہی کھائیں گے۔ ہری مرچ ڈال کر قیمہ بھی یاد سے بھون دینا۔ سنو، دہی بھی گھر پہ ہی جما دو، سحری تک تیار ہو دہی۔ دادی کا ہدایت نامہ شروع ہو گیا اور وہ جی اچھا کہہ کر کام میں لگ گئی۔ تمام کام نپٹاتے وقت کا احساس ہی نہ ہوا۔ وہ تمام سامان فریج میں رکھ رہی تھی جب کسی کے کھنکارنے کی آواز آئی۔ ایوب سلیمان سر پر نماز کی ٹوپی رکھے دروازے میں کھڑا تھا۔ تراویح پڑھ کر آ رہا ہوں، تمہیں کچن میں دیکھا تو چلا آیا، کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ جی نہیں، بہت شکریہ۔ اس کا دل تو ایوب سلیمان کو دیکھ کر عجیب ہی دھڑکنے لگتا تھا۔ میں فارمیلٹی نہیں نبھا رہا ہوں، سچ میں پوچھ رہا ہوں۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر فریج کا جائزہ لینے لگا۔ ہر شے تیار کر کے ایئر ٹائٹ جار میں محفوظ کر کے اس نے کرینے سے فریج میں رکھ دی تھی۔ ایک بات تو ماننی پڑے گی صبا، تمہاری امی کوئی بہت ہی سلیقہ شعار خاتون ہوں گی۔ وہ سراہے بغیر نہ رہ سکا، مگر اس کی اس تعریف نے اس کے چہرے کا رنگ ہی تبدیل کر دیا۔ اوہ، آئی ایم سوری۔ نہیں، جو سچ ہے وہ تو ہے، اور وہ جو کوئی بھی تھی، آپ نے ان کی تعریف ہی کی ہے، اور ماں کی تعریف کیسے بری لگتی ہے، چاہے میں نے انہیں نہیں دیکھا، مگر وہ میری ماں تو ہیں۔ وہ آنسو پر بند نہ باندھ سکی۔ چلو، اگر موڈ ہو تو 2 کپ چائے بنا لو، لون میں جا رہا ہوں میں، وہ باہر کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ اس نے 1 کپ چائے بنائی، اسے دے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ایوب جانتا تھا وہ بہت لیے دیر رہتی تھی، اس کے اور فریدون کے ساتھ تو پھر بات چیت کر لیتی تھی، اگر کوئی اور آ جاتا تو خود کو کچن کی حد تک محدود کر لیتی۔ وہ بہت با کردار اور با سلیقہ لڑکی تھی۔ چپس کے فرش پر سرف پھینک کر جھاڑو سے رگڑ رگڑ کر فرش دھوتے ہوئے اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ وہ مڑی تو ایوب کو دیکھ کر ڈر گئی۔ آج پہلا روزہ ہے، گرمی ہے اور تم کام کر رہی ہو۔ روزہ رکھ کر بلکہ سب کو سحری کروا کر تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا۔
آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ایوب بھائی، میں ٹھیک ہوں، مجھے کام میں مزہ آتا ہے اور ویسے بھی اگر کام نہیں کروں گی تو اور کیا کروں گی، وہ وائپر لگاتے ہوئے بولی۔ پانی کا پائپ اس نے دائیں طرف لگی کیاری میں پھینک دیا، پیاسی زمین سیراب ہونے لگی۔ ایوب نے بہت غور سے زمین میں پانی جذب ہوتے دیکھا، اس لڑکی کا دل بھی تو بالکل اس زمین جیسا تھا نا، پیاسا، محبت کو ترسا ہوا۔ مگر تم بہت زیادہ کام کرتی ہو صبا، اپنی صحت دیکھو پہلے، بہت گندا ہو رہا تھا پورچ، آپ سب کی موٹر سائیکلیں اور تایا ابو کی گاڑی کے ٹائر سے اتنا گندا لگ رہا تھا فرش، تم خود کو ملازمہ بناؤ گی تو سب بھی تمہیں ملازمہ ہی سمجھیں گے۔ تمہارا بھی حق ہے صبا، جیسے ہانیہ اور انوشے کا حق ہے۔ حق؟ وہ وائپر چھوڑ کر ایوب کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کیسا حق ایوب بھائی؟ میں تو آپ لوگوں کا خون نہیں ہوں، میں تو کسی کی کچھ نہیں لگتی، ایک خلا کو پور کرنے کے لیے میں اس گھر میں آئی، ایک عمارت کی اینٹ کم تھی، میں وہ اینٹ بن کر آئی، جب عمارت ہی نہ رہی تو، اور ابو کو تو مل گئی نا انوشے، ان کا اپنا خون، وہ اس طرح سوچتی تھی۔ ایوب کے دل کو کچوکا لگا۔ تم ہماری اپنی صبا ہو، آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کا بڑا پن ہے ایوب بھائی، ورنہ اپنا خون تو اپنا ہی ہوتا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو ابو انوشے کے پاس نہیں یہاں میرے پاس ہوتے، ان کو ابو کہہ کر بلانا میں نے شروع کیا تھا، باپ ہونے کا احساس میں نے دلایا تھا۔ چھوڑے ایوب بھائی، آبلے مت پھوڑے، آبلہ پھوٹ جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، خوش رہا کرو صبا۔ ایوب کا دل تھم سا گیا، دل میں عجیب سا درد جاگا اس لڑکی کے لیے۔ یہ سب خوش رہنے کے لیے ہی تو کرتی ہوں، زندگی کا حصہ ہے یہ کام میرے لیے، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو ٹھیک ہے، میں نہیں روکوں گا، مگر خوش رہنے کے اور بھی کئی طریقے ہیں۔ وہ بات مکمل کر کے آگے بڑھ گیا۔ صبا نے اس کی چوڑی پشت کی سمت دیکھا، وہ کیوں اتنی فکر کر رہا تھا اس کی۔ سارے گھر کی صفائی ستھرائی کے بعد اس نے استری لگا لی، سب کے کپڑے استری کر کے ہینگر کیے، پھر کچن میں گھس گئی۔ افطاری کے لیے بھی سب کی اپنی اپنی فرمائش تھی، کسی کو دہی بڑے پسند تھے تو کسی کو فروٹ چاٹ، کسی نے چکن رول کھانے تھے تو کسی نے کباب، ہر کسی کی پسند کا خیال رکھنا تھا۔ تائی اماں اور ہانیہ تو سو رہی تھی، وہ جانتی تھی کہ اب وہ افطاری سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے ہی اٹھیں گی۔ عصر کی نماز ادا کر کے دادی اماں کا پرہیزی کھانا بھی تیار کر دیا۔ وہ برآمدے کی تخت پر بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی جب ایوب اس کے پاس آ رکا۔ اس نے رکوع پورا کر کے قرآن پاک کو سینے سے لگایا اور نظر اٹھا کر دیکھا، تم اللہ کے کتنے قریب نزدیک ہو صبا، بالکل معصوم، سب کو خوش رکھتی ہو، وہ تم سے بہت خوش ہوگا، تم اپنے حصے کی خوشیاں کیوں نہیں مانگ لیتی؟ مانگتی ہوں، جب وقت آئے گا اور نصیب میں ہوں گی تو مل جائیں گی، ورنہ مجھے کوئی گلہ نہیں، میں ایسے بھی خوش ہوں۔ وہ ایسی ہی صابر اور شاکر ایوب سلیمان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری اور وہ چلا گیا۔ عصر سے کچھ دیر پہلے چپس کے دھلے دھلائے فرش پر کرسیاں بچھا کر درمیان میں میز پر تازہ پھولوں کا گلدستہ سجا کر وہ باورچی خانے میں گھس گئی۔ گھر کے افراد کے حساب سے افطاری کی تیاری ابھی سے کرتی تو وقت پر فارغ ہوتی۔ باورچی خانے کی کھڑکی سے اس نے ایوب کو اندر داخل ہوتے دیکھا تھا، موبائل اس کے کان سے لگا تھا، چہرے پر فکر مندی کے آثار تھے۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید گرمی کا روزہ ہے اور روزہ لگ رہا ہے۔ اس نے ایوب کی پسند کے چکن سموسے بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ صاف ستھرے اور خوشبودار ماحول کا اثر تھا کہ موبائل کان سے ہٹاتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ پھر نہ جانے کس خیال کے تحت اس نے زور زور سے اسے آواز دینا شروع کر دی، صبا صبا۔ جی ایوب بھائی۔ اوفو، اس کے ایوب بھائی کہنے پر وہ پہلی بار اندر اندر چڑا تھا۔ افطاری میں میرے لیے کیا بنا رہی ہو؟ اسے بات کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ چکن سموسا اور دہی بڑے، اس نے بتایا۔ ہاں ٹھیک ہے، سنو صبا، وہ سر اسبات میں ہلاتے ہوئے پھر مسکرانے لگا۔ وہ میرا دوست ہے آفاق، اس کی والدہ آنا چاہ رہی ہیں ہانیہ کے لیے، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ شاید اسی لیے خوش تھے کہ بہن کے لیے اتنے اچھے گھرانے کا رشتہ آیا تھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، آپ کو بہتر اندازہ ہوگا، بھائی ہیں آپ ہانیہ کے، اس نے آہستگی سے کہا۔ نہیں، تم بھی تو لڑکی ہو، اور ایک لڑکی اپنی شادی کے لیے کس طرح کے لڑکے کو پسند کرتی ہے اس کا مجھے کیا اندازہ، تم بتاؤ نا۔ آفاق کو دیکھا ہے نا تم نے، پڑھا لکھا ہے، اچھی جاب ہے، اپنی ذاتی رہائش ہے، فی الحال اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، مگر 1-2 مہینے تک گاڑی لینے کا ارادہ ہے اس کا۔ ہر کسی کا معیار مختلف ہوتا ہے ایوب بھائی، مجھے کیا پتا کہ ہانیہ کو کیسا شوہر چاہیے، اگر
आप मुझसे एक लड़की की ख्वाहिश और पसंद पूछ रहे हैं तो मुझे तो बस वो चाहिए जो मुझे अपना नाम दे और रहने के लिए छत। मुझे ये डर ना हो कि मेरा कोई नहीं। ये बात करते हुए उसकी आंखें भर आई। अय्यूब ने देखा कितनी महरूमी थी उन आंखों में। वाकई आज तक सबा अपना पूरा नाम नहीं लेती थी। पढ़ाई के लिए फॉर्म पर भी चाचू का नाम सरपरस्त के खाने में ही लिखा जाता था, सबा अय्यूब। ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए उसने उसके नाम को मुकम्मल किया था और फिर ज़ेरे लब मुस्कुराया था। अय्यूब भाई, हानिया का रिश्ता आ रहा है। ये तो खुशी की बात है, फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि आप परेशानी में फोन सुन रहे थे। वो आंखें साफ करते हुए बोली, हाँ, वो आफाक ने जब रिश्ते की बात छेड़ी तो मैं समझा कि वो तुम्हारे लिए आना चाह रहे हैं। उसकी बात पर सबा ने हैरत से अय्यूब की तरफ देखा। वो इतना मुकम्मल शख्स उसे अपने सामने इतना अधूरा क्यों लग रहा था। उसके चेहरे पर सबा को देखकर अजीब से रंग चमकने लगे थे। मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, अफ्तारी से कुछ देर पहले आ जाऊंगा, तुम जाओ किचन में। वो गाड़ी की चाबी उठाकर निकल गया। सबा कितने ही लम्हे उसकी बात पर गौर करती रही। कमरे की दीवारों पर अवेजा कुल के फ्रेम को कपड़े से साफ करते हुए उसने मुड़कर देखा। ताई मोबाइल हाथ में लिए दादी के सहारे खड़ी थी। मामला गंभीर लग रहा था। अनोशे और अय्यूब, दादी का लहजा सवालिया था। उसके कदम मेज पर लटखड़ाए। ताई ने मुड़कर उसे देखा और दोबारा सर पकड़कर बैठ गई। उसकी सांस जैसे साकिन थी। अय्यूब से पूछना पड़ेगा, बहुत फर्क है अय्यूब और अनोशे में, 8-9 बरस का। फिर अय्यूब का मिजाज मिला जुला है, कभी संजीदा और कभी बेतकल्लुफ, और वो अनोशे अक्खड़ मिजाज। ताई बड़बड़ाहट के अंदाज में बोली। वो चाह रही थी कि दादी फोन पर ही इनकार कर दे। वो कपड़ा लेकर छलांग लगाकर मेज से उतर आई और बेहिस्सो हरकत ताई के पीछे खड़ी हो गई। बर्दाश्त नहीं हुआ मेरी हानिया का रिश्ता, गलती मेरी ही है। अभी रिश्ता ढंग से आया नहीं, मैंने ढिंडोरा पीट दिया। अब इतनी जल्दी अनोशे के लिए और कौन मिलता। नजर आ गया मेरा अय्यूब। ताई माथा पीटने लगी। दादी भी फोन बंद करके गहरी सोच में थी। ऐसा कुछ गलत भी नहीं, बहू घर की बेटी है और घर का बेटा, अगर रिश्ता हो जाए तो। दादी का वोट अनोशे के हक में था। अम्मा, पहली बात तो ये कि मैं अय्यूब से पूछे बगैर कुछ नहीं कह सकती। मेरे मैके में भी बहुत लड़कियां हैं, खूबसूरत और पढ़ी लिखी। दूसरी बात ये कि सबा उनकी ले पालक बेटी है, हमारी नहीं। अनोशे से पहले उसके फर्ज से फारिग हों, अगर मुनासिब तरीके से उसके लिए रिश्ता देखें और रुखसत करें। जब तक गोद खाली थी उससे दिल बहलाया। अपनी औलाद मिली तो यहाँ हमारे दम पर छोड़कर चले गए। अरे हमें क्या पता किसकी औलाद है, क्या नाम नस्ब है, कैसे ब्याह दें और किससे। उनकी जुबान से पहली बार वो अपने बारे में इस तरह के अल्फाज सुन रही थी। और तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, जाओ देखो बाहर कितना काम है। वो उस तरफ मुड़ी। उसने बाहर जाने में एक लम्हा भी नहीं लगाया था। आंखें आसमान पर डूबते उभरते तारों को देखने में मसरूफ थी। दिल की दुनिया अभी बसी ही कहाँ थी कि उजड़ चली थी, यूं जैसे कि किसी की नजर लग गई हो। ख्वाबों को, ख्वाहिशों को, मोहब्बत की तरफ उठने वाले पहले कदम के बाद ही नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया था। अय्यूब सुलेमान किसी ममनुआ इलाके की तरह दिखाई देने लगा था। और फिर उसकी हैसियत ही क्या थी ऐसे ऊंचे ख्वाब देखने की। कौन थी वो यतीम खाने से लाई गई एक लावारिस बच्ची, जिसे वक्ती तौर पर खिलौना समझकर दिल बहलाया गया। और वो अय्यूब सुलेमान, वो तो इस घर का फर्द था, इस घर का वारिस, बड़ा पोता जो कमाऊ भी था और सबसे पुरअसर शख्सियत का मालिक भी। वो चांद था और सबा खाक वो अनोशे के लिए हाँ कर देगा, ये सोचकर ही उसे धचका लगा था। उसने हानिया को कहते सुना था, अय्यूब भाई अम्मी और खास तौर पर दादी के सामने इनकार ही नहीं कर सकते, और करेंगे भी क्यों, किसके लिए। उनके पास अनोशे से अच्छी चॉइस हो ही नहीं सकती। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। कुछ खो जाने का एहसास था। अभी उसने पाया ही क्या था। अभी तो एक नए एहसास का वजूद था जिसने किसी पौधे की तरह बीज से सर निकाला था। सबा, किसी ने दरवाजा पीटा था। वो हानिया थी। वो आंखें साफ करती बाहर आई। कोई होश है तुम्हें, क्या वक्त हो चला है, सहरी बनानी है, जल्दी करो। अम्मी की तबीयत पहले ही खराब है। वो घबरा गई। जब से उसने होश संभाला था और फिर घर के कामों में पड़ी थी, ऐसा पहली बार हुआ था। वो शर्मिंदा थी। वो वजू करके जल्दी से किचन में घुस गई। आप आराम करे ताई अम्मी, मैं कर लेती हूँ। वो तेजी से हाथ चलाने लगी। हाँ, ऐसा कौन सा शौक बना रही थी कि होश नहीं रहा। वो जाते जाते
बुड़बड़ाहट के अंदाज में बोली। उसने नजरें उठाकर देखा, अय्यूब दादी के पास बैठ रहे थे। वो क्या कहती कि उसका रोग क्या है? भाई बहू, मेरा ख्याल है कि अनोशे अपने माँ बाप के साथ आ जाए, यहाँ का माहौल देख ले तो फिर बात आगे चलाएं। इतनी जल्दबाजी ना करें, और फिर अभी हानिया के रिश्ते की हाँ भी करनी है, पहले इस फर्ज से फारिग हो जाएं। दादी ने सहरी के बाद बात छेड़ी। वो जो बर्तन समेट रही थी अय्यूब की तरफ देखने लगी। फरीदौन ने उसकी सिमत देखा, शायद वो उसकी चोरी पकड़ना चाह रहा था। वो बर्तन लेकर अंदर बढ़ गई। क्या मतलब अम्मा, आपने इनकार नहीं किया शाजिया को? नहीं, और वैसे भी अय्यूब की उम्र है अब शादी की, माशाल्लाह से 21 वर्ष का हो गया है, और कितनी देर करोगी? वो तो ठीक है अम्मा, मगर और फिर ये सबा, उसके बारे में क्या सोचा है उन्होंने? ताई की बात पर उसके कदम वहीं रुक गए। अय्यूब की नजरें उठी। भाई बहू, सबा की हकीकत से अपने पराये सब वाकिफ हैं। किसी अच्छे घराने से तो रिश्ता आने से रहा। हाँ, अगर आ भी गया तो हम सबकी जिम्मेदारी है। आफ्ताब तो चाहता ही नहीं था बच्चा गोद लेना। ये तो अल्लाह बख्शे बहू को अपनी महरूमी दूर करने के लिए मियाँ से लड़ झगड़ कर ये बच्ची ले आई। खुद अल्लाह को प्यारी हुई तो आफ्ताब की उम्र ही क्या थी। उसने शाजिया से ब्याह किया तो खुदा ने अपनी बच्ची दे दी। हमारा जी ना चाहा सबा को दोबारा यतीम खाने भेजने पर। क्या करते, सर पर हाथ रख दिया। अब अकेले आफ्ताब को जिम्मेदार ठहराना गलत है। दादी जो कह रही थी सच था। वो एक पल में कितनी फालतू सी हो गई थी। अय्यूब की आंखों में क्या कुछ नहीं था। वो उठकर चला गया। मैंने अय्यूब से भी बात की है, कहता है पहले चाचू चाची और अनोशे को आने तो दे। दादी की बात पर फरीदौन की नजरें एक बार फिर उसकी तरफ उठी थी। वो दोबारा किचन में रोपोश हो गई। शाम का वक्त था। आज अफ्तारी में एहतमाम मामूल से कुछ ज्यादा था। हानिया और आफाक का रिश्ता पक्का हो रहा था। निकाह या मंगनी का फैसला ईद के बाद पर छोड़ दिया गया था। दादी का ख्याल था कि तब तक आफ्ताब और शाजिया भी आ जाएंगे और अय्यूब और अनोशे के सिलसिले में भी वो कोई फैसला कर लेंगी तो दोनों रस्में इकट्ठी हो जाएंगी। वो लॉन के घिसे हुए बदरंग जोड़े में मलबूस बालों का जोड़ा बनाए किचन में सबकी पसंद के मशरूबात बनाने में मसरूफ थी। जब अय्यूब घर में दाखिल हुआ, किचन की खिड़की खुली थी। चिप्स के धुले धुलाए फर्श पर कुर्सियां तरतीब से बिछी थी। मेज पर ताज़ा फूलों का गुलदस्ता महक रहा था। ये उसका रोज का मामूल था। वो कुर्सी पर बैठ गया। वो अपने काम में मगन थी। अय्यूब ने कभी उसे ढंग के कपड़ों में नहीं देखा था। हमेशा हानिया और जोहरा आपा उसके लिए अपने इस्तेमाल शुदा कपड़ों का शापर उठा लाई थी। हानिया और आफाक का रिश्ता पक्का हो गया। अफ्तारी के बाद दुआ कर दी गई और रस्म ईद के बाद रखी गई। ये खबर जब बाहर वालों को सुनाई गई तो उन्होंने अय्यूब और अनोशे की बात फिर से छेड़ दी। जो भी है होगा तो वही जो अय्यूब चाहेगा। आखिर इस घर का सबसे ज़हीन और कमाऊ लड़का है। फिर मैं उसकी माँ हूँ, कुछ हक है मेरा, अरमान है मेरे। ताई ने मुँह बसोरा। हाँ तो फरीदौन पे कर लेना ये अरमान पूरे। दादी ने खफगे से घूरा। देख बहू, अनोशे पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, आजकल के तौर तरीके जानती है, सबसे बढ़कर बाहर से आ रही है, खूब दौलत कमाई है उसके बाप ने, सब कुछ उसी का तो है। आजकल के लड़के यही चाहते हैं। आपने मेरे अय्यूब को भी ऐसा समझ लिया? ताई का गुस्सा दीदनी था। वो बर्तन समेटने लगी। न जाने क्यों किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। वो असर की नमाज अदा करके बाहर बरामदे में आ बैठी। रमजानुल मुबारक की वजह से अमूमन इस वक्त घर के सब अफराद सो रहे होते थे। अय्यूब और फरीदौन अपने अपने काम पर होते थे। वो यूं ही तख्त पर बैठी लायानी सोचों में डूबी हुई थी जब इतलाई घंटी बज उठी। ये इस वक्त कौन हो सकता है? वो पाँव में चप्पल पहनकर बाहर की तरफ बढ़ी। गेट के बाहर गाड़ी की आवाज थी। ये तो अय्यूब की गाड़ी की आवाज थी। उसने घबरा कर गेट खोल दिया। शायद तबीयत खराब हो गई हो। गेट खोलने पर उसे फरीदौन का चेहरा नजर आया जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था। बराबर वाली सीट पर नजर पड़ी तो दिल ने धड़कना छोड़ दिया। हाथ पाँव में पसीना आने लगा। पीछे भी जो दो नफूस बैठे थे उनकी नजरें उस वजूद पर थी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, निहायत मुअद्दिब अंदाज में सलाम किया था उसने। उन्होंने उसके सर पर धीरे से हाथ रखा और अंदर बढ़ गए। अनोशे और मामा ने तो लम्हा भर रुकने की जहमत भी गवारा ना की। ये यूं अचानक? वो फरीदौन की तरफ मुड़ी। खतरा इनको तुमसे और तुम्हें इनसे। सबा, उनके और तुम्हारे दरमियान अय्यूब नामी इलाका है जिसे फतह करने की जंग है। फरीदौन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने सर झुका लिया। जंग वो लोग करते हैं जिनके पास हथियार हो। मैं तो खाली हाथ ही नहीं, खाली दामन और खाली दिल भी हूँ। वो रो पड़ी। फरीदौन उसकी नजरों से समझ चुका था कि वो उसके भाई को पसंद करती है। सब कुछ अय्यूब पर मुनहसिर है। तुम उससे खुलकर बात क्यों नहीं करती? फरीदौन का लहजा संजीदा था। क्या? उसके हाथों के तोते उड़ गए। फरीदौन तो नजूमी निकला।
यही कि तुम अय्यूब नामी इलाके को फतह करना चाहती हो, हुकूमत करना चाहती हो। मैं इतने ऊंचे ख्वाब नहीं देखती फरीदौन, और कहने की जुर्रत नहीं। वो पता नहीं क्या समझे, मुझे तो बस रहने को ठिकाना चाहिए। उसने आंसू साफ किए। गलत, बिल्कुल गलत। रहने को तो ठिकाना मैं भी दे सकता हूँ, मगर जानता हूँ कि तुम्हें इस घर के अलावा कहीं किसी के दिल में भी रहने की जगह चाहिए, और वो दिल अय्यूब सुलेमान का ही है। वो उसका दिल पढ़ रहा था, वो सफ़े पढ़ रहा था, उसके दिल की किताब जो शायद खुद उसने भी न पढ़े थे। सबा कहाँ रह गई? अफ्तार का इंतजाम कर, मेरा बेटा आया है, मेरी अनोशे आई है। दादी की आवाज पर वो बर्क रफ्तारी से अंदर बढ़ी थी। अफ्तारी में यहाँ से वहाँ तक दस्तरखान बिछा था। वो थोड़ी सी अफ्तारी करके उठ गई। मामा ने बात छेड़ दी। हम लोग अनोशे की खातिर आए हैं। करने को तो मैं इसका रिश्ता वहाँ भी कर सकती थी, मगर मुझे शुरू से अय्यूब भी पसंद था अपनी अनोशे के लिए। उनकी बात पर अय्यूब के माथे पर बल पड़ गए। उसने उसकी तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई। वो किचन के दरवाजे से चिपकी खड़ी थी। अनोशे भी अय्यूब को पसंद करती है। वहाँ हमने अय्यूब की तस्वीर भी लगा रखी थी। जो कोई पूछता था हम यही कहते थे कि अनोशे का मंगेतर है। उन्होंने बात जारी रखी। हथियार डाल दूंगी तो कैसी जंग, वो काबिज हो जाएगी और तुम कश्तियाँ जलाकर जंग का आगाज करो। सबा, वापसी का कोई रास्ता ना छोड़ो। हाँ, उनकी वापसी की टिकट आसानी से हो जाएगी। फरीदौन उसकी मदद के बहाने आया था। लम्हा भर को उसके पास रुका। मामा की नजरों ने अजीब अंदाज से इस मंजर को देखा था। हमें कोई एतराज नहीं, मगर सबा को भी तो गोद लिया था, बेटी बनाकर लाए थे, पहले उसके बारे में कुछ सोच लें। भाभी, ठीक है, मैंने सबा को गोद जरूर लिया था, मगर अनोशे के बाद जरूरत नहीं रही। जब इंसान के पास अपनी चीज आ जाए तो वो उधार की या मांगे की चीज वापस कर देता है। और वैसे भी असल फायदा तो आप लोगों ने उठाया, मुलाजमा नहीं रखनी पड़ी। ऐसे कुल वक्ती मुलाजमा रखनी पड़ती तो मैं देखता कैसे पूरी पड़ती आपकी। वो बोल रहे थे और अंदर कुछ टूटता ही जा रहा था। उसने सहारे के लिए कुछ पकड़ना चाहा तो अय्यूब ने उसे थाम लिया। उसकी शर्ट से उठती महक और फरीदौन की बातों ने दिल की धड़कनों को अलग ही राह समझा दी थी। उसने नजरें उठाकर देखा। वो उसे शानों से थामे उसी को देख रहा था। यानी उसकी शादी हमारे जिम्मे है? ताई ने हैरत से पूछा। मिलकर कर लेंगे सब, कोई रिश्ता देख लें, उसके लिए तो कोई भी चलेगा। और वैसे भी भाभी, अपने बेटों पर भी नजर रखें। मुझे तो उसके लक्षण अच्छे नहीं लगते, और फिर क्या पता किसका खून है, ना माँ का पता ना बाप का। मैं तो कहती हूँ किसी ड्राइवर या वॉचमैन से 2 बॉल पढ़वा कर रुखसत करें, आपका फरीदौन बच जाएगा। बहुत आगे पीछे रहती है उसके, मैंने 2 घंटे में देख लिया। आप 24 घंटे नजर के सामने ना देख सकी। वो जहर उगल रही थी फरीदौन के बारे में। उसने घबराकर अय्यूब को देखा। उसकी शानों पर अय्यूब की गिरफ्त ढीली पड़ गई। पानी पी लो तुम। वो उसे गिलास थमाकर बाहर निकल गया। कहीं अय्यूब ने उन बातों से कुछ गलत तो नहीं समझ लिया। नहीं फरीदौन, मेरा भाई है, दोस्त है। वो फर्श पर बैठकर रोने लगी। जब इंसान के पास अपनी चीज आ जाए तो वो उधार की चीज या मांगे की चीज वापस कर देता है। एक बर्छी सी उतर गई दिल में। आपका फरीदौन बच जाएगा। उसके किरदार पर कीचड़ उछाली गई। ना माँ का पता ना बाप का, ये गाली थी। वो एक झटके से उठी। वो जो कोई भी थे, यकीनन कोई रास्ता नहीं होगा उनके पास। और मेरी माँ यकीनन बहुत सलीकाशवार और बाहया औरत होगी, इसलिए तो मैं इतने सारे काम खुशी से करती हूँ और मोहब्बत करने के बावजूद कभी अय्यूब को बता नहीं सकी। इन्हें कोई हक नहीं मेरे माँ बाप को गाली देने का। अगर उनकी जगह उन्होंने मुझे पाला है तो सिला दे दिया मैंने इन लोगों की चाकरी करके। एक फैसला करके वो अपने कमरे की तरफ भट गई। चंद चीजें एक बैग में डालकर वो नीचे आई थी। कुछ सोचकर वो पहले अय्यूब के कमरे की तरफ बढ़ी, फिर फरीदौन के कमरे का दरवाजा बजाया। दरवाजा खुला था। वो अंदर दाखिल हुई। वो हमेशा की तरह मोबाइल पे मसरूफ था। क्या हुआ सबा? फरीदौन, मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए। उसकी बात पर वो सीधा होकर बैठा। खैरियत? उसके लहजे में हैरत थी। कभी उसने ऐसा मुतालबा ना किया था। तुम मुझे दे रहे हो या नहीं? हाँ, दे रहा हूँ। कितने? उसने वॉलेट निकाला। 500। 500? क्या करोगी? उसकी छठी हिस्स खतरे की घंटी बजा रही थी। यहाँ से यतीम खाने या दारुल अमान का किराया। वो नोट पकड़ते हुए बोली। क्या? वो करंट खाकर सीधा हुआ। तुमने कहा था ना कि कश्तियाँ जलाकर जंग करो। अफ्तारी के टाइम अब्बू की बीवी ने बहुत गलत बातें की। मुझे लगता है कि उन्होंने तुम्हारे बारे में जो गलत बात की, अय्यूब ने उस पर यकीन कर लिया है। तो फिर मैं किसके लिए कश्तियाँ जलाऊं? उन्होंने गाली दी मुझे, मेरे माँ बाप की। और तुमने सुना नहीं कि उन्होंने क्या कहा? अब्बू ने उन्होंने कहा मैं उधार की चीज हूँ, इसलिए मैं वापस जा रही हूँ। और अय्यूब का क्या होगा? मुझे लगता है कि भाई भी तुमसे मोहब्बत करता है। फरीदौन ने मुड़कर वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा।
वहम है तुम्हारा, कभी नहीं कहा उन्होंने ऐसा। और अब भी अनोशे के हवाले से घर में बात हो रही है तो खामोश हैं। मुखालफत नहीं की उन्होंने, शिकवा जुबान से फिसला, बाहर शोर सा हुआ। अरे देखिए, रात के इस पहर क्यों गई फरीदौन के कमरे में? भाभी, पट्टी बंधी थी आपकी आंखों पर। लम्हे के 1000वें हिस्से में वो दोनों समझ गए कि बाहर क्या शोर मचने वाला है। वो दोनों कटहरे में होंगे। रमजान का महीना और शक्ल देखो मीसनी की, मैं तो आते ही समझ गई थी। मेहमानों का इस्तकबाल करने की बजाय फरीदौन से गप्पे लड़ाने खड़ी हो गई मोहतरमा। मामा की आवाज सबसे बुलंद थी। वो डबडबाई हुई नजरों से फरीदौन को देखने लगी। उसी वक्त वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अय्यूब बाहर निकला, ट्राउजर और बनियान गले में तौलिया डालकर। गीले बालों के साथ वो उन दोनों के सामने खड़ा था, यानी वो वहीं था उसी कमरे में। ये सब क्या है सबा? ताई उसके सामने आ खड़ी हुई। हानिया और अनोशे को बाहर भेज दिया, मासूम बच्चियां हैं, उन्हें क्या पता है ऐसी हरकतों का। उसकी मुट्ठी में दबा 500 का नोट ताई के थप्पड़ से नीचे गिर गया। ताया अब्बू ने पहली बार उसे शक भरी नजरों से देखा। 500 फरीदौन की जेब से निकलवाए हैं तूने कमीनी? दादी का ये लहजा पहली बार सुन रही थी वो, और किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ी थी। जी किराए के लिए थे। सबा ने वापिस दारुल अमान जा रही थी। फरीदौन से खामोश ना रहा गया। उस लम्हे सबा को सिर्फ ये फिक्र थी कि कहीं अय्यूब भी उसे फरीदौन के कमरे में देखकर गलत ना समझ ले। बोलती क्यों नहीं, चाहती क्या है, कब से चल रहा है ये सब? ताई ने सर पकड़कर झटका दिया। वो पीछे खड़े अय्यूब से टकरा गई। उसने भीगी पलके उठाकर देखा, कितने रंग थे उन आंखों में। वो कुछ कहता क्यों नहीं? वो एक झटके से मुड़ा। फरीदौन की कपड़ों की अलमारी खोलकर कमीज निकाली। कमीज के बटन बंद करके उसने सबा की कलाई थाम ली। चलो कहाँ? तकरीबन सब ही चीखे थे। यतीम खाने, उधार की चीज वापस कर आए तो बेहतर है। वो उसे घसीटता ले गया। जो डर उसके दिल में जागा था वो सच निकला। दुनिया खत्म हो गई। जीने का मकसद दम तोड़ गया। अय्यूब ने भी उसे गलत समझ लिया। वो होश से बेगाना किसी रोबोट की तरह उसके पीछे घसीटती चली गई। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा था। अफ्तारी बाजार से आती थी। चिप्स के फर्श पर दख्तों के पत्ते और परिंदों की गंदगी पड़ी रहती। मेज पर रखा गुलदान वीरान था। वो कुर्सी पर बैठा बार बार किचन की खिड़की की तरफ देखता। भाई, क्या वाकई उसे दारुल अमान छोड़ आए? बहुत मोहब्बत करती थी वो आपसे, मुझे भाई समझती थी अपना। फरीदौन का दिल चाहा अय्यूब का गिरबान थाम ले, मगर उसने सख्ती से मना किया था कि अब उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। घर में ईद की शॉपिंग अरूज पर थी। साथ ही साथ अनोशे और अय्यूब की मंगनी की तैयारी भी चल रही थी। दादी का ख्याल था कि निकाह कर दिया जाए। सब लड़कियां बाजार जाने के लिए तैयार थी। जोहरा आपा ने मेहंदी लगवानी थी। चांद रात मतवक्के थी। फरीदौन ने फैसला किया था कि वो उसकी ईदी लेकर शहर के हर दारुल अमान में जाएगा, कहीं तो मिलेगी ना। सुन, अय्यूब ने उसे बाइक स्टार्ट करते देखकर आवाज दी। हाँ, वही अक्खड़ लहजा। गवाह बनेगा? कैसा सवाल था, वो समझ गया। दादी का ख्याल था कि असर के बाद अय्यूब और अनोशे के निकाह की तकरीब घर में ही रख ली जाए। होंगे ना गवाह? यहाँ नहीं, वहाँ दारुल अमान में, मेरे और सबा के निकाह के गवाह। उसने बम फोड़ा। ये कुछ सामान है, मैंने खरीद कर ऑफिस में रखा था, ये वहाँ पहुँचा देना। उसे खबर ना हो। दारुल अमान की मैडम बहुत अच्छी औरत है, उसे कहना कि सबा के लिए सरप्राइज है। और सुन, यहाँ भी किसी को खबर ना हो। वो तो छुपा रुस्तम निकला था। फरीदौन ने उसे गले लगा लिया। आप उस पर शक नहीं करते ना भाई? ये कोई मजाक तो नहीं? मजाक में कोई इतना खर्चा करता है? 40,000 का जोड़ा लिया है उसके लिए। सारी जिंदगी हानिया और जोहरा की उतरन पहनती रही। अब अपने शोहर की कमाई से तो अपना जाती जोड़ा पहनने का हक हो उसका। अय्यूब मुस्कुराया। फरीदौन ने उसे फिर गले लगा लिया। और यहाँ घर पे वापसी के टिकट आसानी से हो जाएंगे। वो मुस्कुराया और अनोशे की आवाज पर ड्राइविंग सीट संभाल ली। चांद नजर आने की पूरी उम्मीद थी। सारी लड़कियां ईद की तैयारी कर रही थी। मैडम ने जबरदस्ती उसे भी मेहंदी लगवाई थी। वो तो सारी जिंदगी मेहंदी ना लगाने की कसम खा बैठी थी। अय्यूब के नाम की मेहंदी लगती तो बात भी थी। मेहंदी लगी तो सारी लड़कियां चांद देखने के बहाने बाहर निकल गई। वो हाथों में लगी मेहंदी को देखती रही। किसी के खनकाने पर सर उठाया। अय्यूब, दिल को कुछ हुआ? मेरे नाम की मेहंदी लगा ली। वो उसके सामने आ खड़ा हुआ, सीने पर हाथ बांधे। उस रोज आप मुझे यहाँ उनके हवाले करके चले गए। फरीदौन बेचारे को मुफ्त की सुननी पड़ी होंगी। वो रोने लगी। नहीं, कुछ गलत होता तो उसे बातें सुननी पड़ती ना। भाई है वो तुम्हारा। मतलब आपने मुझे गलत नहीं समझा तो फिर?
मुझे यहाँ क्यों छोड़ गए। आंसू निकल पड़े ताकि मांगे कि सबा को वापस छोड़ जाऊं और अपनी सबा को अपना बनाकर हमेशा के लिए ले जाऊं। पहले तुम्हें यहाँ से चाचू लेकर गए थे, उनसे संभाला ना गया तो उनकी सबा वापस छोड़ गया। मैं अब सबा अय्यूब को लेकर जाऊंगा। कोई निकालने की हिम्मत नहीं करेगा और अगर निकालेगा तो अय्यूब अपनी बीवी को खिला भी सकता है और रहने के लिए छत भी दे सकता है। वो गंभीर लहजा। सबा को लगा वो ख्वाब देख रही है और मोहब्बत करता हूँ इसलिए तो लेने आया हूँ, इसलिए तो आफाक के यहाँ से रिश्ता आने पर सोचकर परेशान हो गया था कि कहीं कोई तुम्हारा नाम ना ले दे। तुम तैयार हो जाओ, निकाह है हमारा। मैं पहले अपने चांद को देखना चाहता हूँ कि सबा अपने कपड़ों में कितनी प्यारी लगती है। अपने चांद को देखकर ईद का चांद देखूंगा। वो करीब आकर खड़ा हुआ, उसके मेहंदी वाले हाथ थामकर बहुत मोहब्बत से बोला, मैं अय्यूब सुलेमान तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करूंगा, तुमसे मरते दम तक मोहब्बत करूंगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए खूब मेहनत करूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए हर दुख झेलूंगा, क्योंकि मोहब्बत करता हूँ तुमसे और करता रहूंगा। वो मेहंदी की खुशबू को सांसों के अंदर उतार रहा था और वो उसके अंदर छुपी इतनी मोहतरम मोहब्बत की मशकूर हो रही थी। यतीम खाने से तुम्हारे असल अम्मी अब्बू का मुकम्मल पता किया है मैंने। पसंद की शादी की थी उन्होंने। तुम्हारे अब्बू के घर वाले जागीरदार थे, दोनों को जान का खतरा था, इसलिए तुम्हें तहफ्फुज़ के ख्याल से यतीम खाने में बतौर अमानत रखवाया, मगर दोनों को मार दिया गया। यही यतीम खाने के बाहर उनके कफन दफन का इंतजाम भी वेलफेयर वालों ने किया था। चाचू सब जानते थे, इसके बावजूद होते हैं ऐसे पत्थर दिल लोग भी। और अगर हमें भी मार दिया तो? उसने नजरें उठाई। मार ही नहीं सकते, चाचू क्या भेजते हैं घर, और अब्बू तो उस घर में रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहे हैं। सबके इखराजात पूरे करने वाला अय्यूब सुलेमान मर गया तो अयाशियां कैसे होंगी। वो हंसा। सबा ने उसके होंठों पर हाथ रख दिया। काजी साहब आ गए और गवाह भी। फरीदोन ने हंकारा भरा, वो पीछे हो गई। उसे दुल्हन बनाया गया, निकाह हुआ। दारुल अमान की सारी लड़कियों को अय्यूब ने जबरदस्त सी अफ्तारी करवाई। घर से बार बार फोन आ रहे थे। निकाह का सारा इंतजाम हो चुका था, मगर दुल्हा गायब था। इधर चांद नजर आया, उधर अय्यूब दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। कहाँ थे, इतनी देर लगा दी। अनोशे कब से तैयार बैठी है। फरीदोन, अनोशे हमारी कजन है, मेहमान भी और इज्जत भी। यहाँ इज्जत बेइज्जती का सवाल है, तो उसकी वापसी के टिकट के बारे में क्या ख्याल है। हम वो तो नहीं कर सकते जो उन्होंने सबा के साथ किया, मगर हमें क्या पता कि इंग्लैंड में उसका किरदार। अय्यूब की बात अधूरी रह गई। सब अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए। आप कहाँ चले गए थे अय्यूब भाई, और अब ये सब क्या है। हानिया आगे बढ़ी। भाई घर की छत देने का वादा करके छत नहीं छीनेंगे और ना ही नाम देने का वादा करके मुकरेंगे। सबा मेरी बहन है और अपनी बहन की खुशी के लिए मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। फरीदोन दुल्हन के बराबर में बैठ गया। ये क्या बकवास है। सबा की मामा और ताई एक साथ बोली। अगर आप अनोशे की शादी फरीदोन से करना चाहती हैं तो ठीक है, वरना आप लोग वापसी के टिकट करवा लें। ये क्या बकवास है। चाचू धाड़े। ये सच है चाचू, आप इस बच्चे को अपना बनाकर लाए और फिर एक बार फिर उसे लावारिस और यतीम बनाकर चले गए। वो जैसे भी सही मगर हमारे घर में रह रही थी। आप लोग आए तो इस पर इल्जाम भी लग गया। उसे वो गाली दे दी जिसमें उसका रत्ती भर भी कसूर नहीं था। आपने अपनी ले पालक बच्ची बदनाम और जलील करके वापस भिजवा दी, अपनी बीवी की जुबान बंद न करा सके, क्योंकि सबा आपकी बेटी अनोशे की खुशियों के रास्ते का कांटा थी। खैर, आपकी सबा को मैं छोड़ आया था दारुल अमान, मगर अपनी बीवी को ले आया हूँ मैं आप सबसे मिलवाने। सबा अय्यूब चाहे तो उसे कबूल कर ले, वरना मेरे पास उसे देने को बहुत कुछ है, नाम भी, दौलत भी और छत भी। उसका लहजा बहुत मजबूत था। 2 कदम पीछे हटकर उसने दरवाजा खोला और चादर में सिमटी समटाई सबा को अपने साथ लगाए अंदर ले आया। ये है मेरी सबा अय्यूब, जिसे कोई अब नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये मेरी बीवी है, अब किसी की ले पालक बेटी नहीं। वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोला। जीती रहो। ताया अब्बू ने उसके सर पर हाथ रख दिया। बाकी सब भी शर्मिंदा दिखाई देने लगे। अनोशे, तुम्हें तो फरीदोन के साथ निकाह पर कोई एतराज है क्या। ताई ने अनोशे की तरफ देखा। नहीं आंटी, आपके बेटे तो रिश्ता निभाना चाहते हैं। एक ने भाई होने का हक अदा किया और बहन की खुशी की खातिर मुझे अपनाने को तैयार हो गया, और दूसरे ने अपनी मोहब्बत को बाइज्जत मकाम दिया। मुझे कोई एतराज नहीं, मगर फरीदोन ये सब कुछ सिर्फ सबा की खुशी के लिए कर रहा है। शायद उसकी पसंद और मर्जी कोई और हो। बहुत
अच्छी तरबियत की है आपने बेटों की आंटी, वो सच्चे दिल से कह रही थी। उन्होंने फख्र से अय्यूब और फरीदौन को देखा और फिर शर्मिंदा शर्मिंदा सी सबा के पास जा खड़ी हुई। अब तो तुम मेरे अय्यूब की दुल्हन बनकर आई हो, बहू हो मेरी, आओ। उन्होंने बाजू खोल दिए, वो उनके गले लगकर रोने लगी। मुझे भी कोई एतराज नहीं, तो फिर वापसी के टिकट सिर्फ चाचू चाची के करवाने हैं। फरीदौन शौक हुआ। मेरी एक शर्त है। अनोशी की मामा के दिल की असल बात जुबान पर आ गई, जिसकी वजह से वो अय्यूब की ख्वाहिशमंद थी। क्या भाई साहब, आप अय्यूब की बजाय फरीदौन को बिजनेस में चेयरमैन बनाएंगे। वो हर सूरत फरीदौन और अनोशी को सबा से बढ़कर देखना चाहती थी। मंजूर है, अय्यूब ने खुले दिल से कहा। सबा और ताई ने हैरत से उसे देखा। फिक्र मत करो, तुम्हारा अय्यूब सच में छुपा रुस्तम है। तुम क्या समझती हो, मैं अब्बू के बिजनेस की वजह से कामयाब बिजनेसमैन हूँ? नहीं यार, मेरा खुद का काम भी है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का। मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि शराकत वाले काम पर भरोसा करके बैठा रहूँ। अब्बू के काम में मेरे अलावा फरीदौन, जोहरा आपा और हानिया भी हिस्सेदार हैं। मेरे खुद के बिजनेस का मैं इकलौता मालिक हूँ बिला शिरकत, और ये लोग ये नहीं जानते कि घर के आधे इखराजात मैं खुद अपनी जेब से पूरे करता हूँ। तुम्हारा पलड़ा यहाँ भी भारी है जानम, वो सरगोशी के अंदाज में बोला। सबा मुस्कुरा दी। अनोशे और फरीदौन का निकाह हुआ। मुबारक सलामत का शोर मचा। फरीदौन अपने कमरे में चला गया और अनोशे अपने कमरे में। रुखसती 1 साल के बाद होना करार पाई ताकि अनोशे की भी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए और फरीदौन भी फैक्ट्री की भागदौड़ अच्छी तरह संभाले। सब ने सबा के सर पर हाथ रखा और शर्मिंदा से अपने अपने कमरों में घुस गए। चले, अय्यूब ने हाथ आगे किया। कहाँ? उसका दिल धड़कने लगा। मेरे कमरे में, मेरा मतलब है हमारे कमरे में, वो सरगोशी के अंदाज में बोला। उसने मेहंदी वाले हाथ अय्यूब के हाथ में थमा दिए। ना राहों में फूल बिछे थे, ना सेज सजी थी और ना शादियाने बजे थे। फिर भी वो किसी मलका की तरह अय्यूब सुलेमान के कमरे में दाखिल हुई थी। खिड़की के पार ईद का चांद मध्यम हो रहा था। अपने चांद को देखकर उस चांद को देखा था। कसम खाई थी, पूरी कर दी। अब ईद मिलो। उसने दरवाजा बंद करके बाजू आगे किए। वो अंगूठा दिखाकर आगे भाग गई। सुबह नमाज के बाद ईद मिलेंगे। वो खुशी से हंसी। बाकी सबको सुबह मिलेंगे, हमारी ईद तो अभी हुई है। उसने उसे बाजुओं से पकड़कर खींचा। वो उसके बाजुओं में समा गई। शोहर की मजबूत बाहें किसी किले की हिसार की तरह होती हैं। सबा ने जिंदगी में पहली मर्तबा इस तहफ्फुज़ को महसूस करके अय्यूब की लंबी उम्र की दुआ की थी। ईद का चांद आमीन कहकर नींद के मजे लेने बादलों की आगोश में चला गया।